Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jesus, we thank you. Lord, we bless your holy name. King Jesus, we glorify you. We glorify you. We glorify you. King Jesus, we come into your presence, Lord. We come into your presence. We come into your presence, Lord. Come into your presence through the shed blood. We access your presence through the shed blood. We access your presence through the shed blood on the cross of Calvary. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for the blood. Hallelujah. यीशु मसीह के लहू को पुकारिए, धन्यवाद कीजिए उसके पवित्र जलाली लहू के लिए। हालेलुया। लहू को पुकारिए सब। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए सब, मेरे संग आइए। राजा जी जान लुटाई आपने मेरे लिए। राजा जी सूली उठाई क्यों आपने ये। किरणों में इन बरसातों में चांदनी रातों में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। मेरे संग आइए। शाफी जी प्यारे मसीहा, यही है आशा मेरी। चरणों में आपके बैठा रहूं मैं, यही तमन्ना मेरी। नस नस में मेरी रग रग में दिल की धड़कन में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। Hallelujah. Father God, Avinu Malchinu, we bless you through the shed blood of Yahushua HaMashiach. Thank you that we have access unto you. And this access is not through our merit. This access is only through the blood of the Lord Jesus of Nazareth. And Father, the blood of your Son Jesus has paved a new and a living way. It is not the way of religion or tradition. It's new and living way that the blood of Jesus has created. And Father, we tread on that path and we access your presence. Hallelujah. Thank you for the anchor of our hope lies beyond the veil. We access your presence, Father. Father, in Jesus' name, I plead your blood over everyone that logged on their families, on their loved ones, Father, from around the world, people who are connected on the internet via Facebook Live. I pray, Father, that the protection of the blood of Jesus will be unleashed over your people against this vicious plague that is claiming many, many lives around the world. Father, I come against panic and fear and confusion that this devastation is causing. Father, in Jesus' name, we come before you. प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं। हम राष्ट्रों को, देशों को तेरे आगे उठाते हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरी करुणा के लिए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि तू क्षमा करे, दया करे, कृपा करे, माफ़ करे सारे अपराध। प्रभु प्रभु, हम गैप में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में।
मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं ताकि तेरी कृपा हो जाए, तेरा अनुग्रह हो जाए यीशु नासरी। हालेलुया, तेरा धन्यवाद प्रभु। जब तेरे वचन पे आज हम मनन करते हैं, लॉर्ड मे यू ओपन अप योर वर्ड टू अस, एंड लॉर्ड मे यू ओपन अप आवर आईज एंड ओपन अप आवर हार्ट टू रिसीव योर वर्ड। फादर, दैट योर वर्ड इज लाइट on a path that we may navigate through this dark phase in human history. Through the light of your word, Father, we can only do it through the light of your word. May the light shine. Hallelujah. तेरी रोशनी चमके यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। बहुत सारे लोग विदेश से हमारे संग जुड़े हैं। There are many people who are with us online from different parts of the world. We welcome you in Jesus' mighty name. I would actually apologize because I won't be speaking much in English, because there are people who don't know English much online who are connected. So in between I'll be, jumping from Hindi into English just to give you the punchline. But today I am talking about the order of the end times. There are people who are saying that we have already stepped into tribulation period. There are people who are saying that the seals have already been broken, and there are people who are claiming that the horses are already stalking in the earth. So I am bringing you the word of God, the chronological sequential order from the word of God. परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे कि इस समय पृथ्वी पे क्या घट रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रिबुलेशन के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मोहरें टूट चुकी हैं, चौथी मोहर टूट गई है। और कई लोग कोरोना वायरस को उस घोड़े के साथ जो क्लोरोस है, पेल ग्रीन हॉर्स है, और उसके ऊपर थैनाटोस बैठा है, डेथ, और उसके पीछे हेडीज है, नरक, और क्लोरोस है वो जिससे वर्ड निकलता क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है जो इसके लिए दे रहे हैं कोविड-19 के लिए, क्लोरोक्विन, वो भी वहीं से निकलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। हालेलुया। क्या क्या साइंस हैं, ट्रिबुलेशन क्या है। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 33 वचन में कहते हैं, ढांढस बांधो क्योंकि जगत में तुम्हें सताव है। Jesus says, be of good cheer because you have tribulation in the world. Then Matthew chapter number 5 verse number 11 talks about the persecution that every believer will go through. This persecution and the tribulation that Jesus is talking about, the Greek word for that is thlipis, which means tribulation, जिसका मतलब है सताव, ट्रिबुलेशन। लेकिन ये महाक्लेश नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं जगत में तुम्हें क्लेश है, लेकिन ये वो महाक्लेश नहीं है जिसके विषय में बाइबल बात करती है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 21 वचन पढ़िएगा, और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 22 वचन पढ़िएगा, 7 अध्याय का 14 वचन पढ़िएगा। मत्ती 24 का 21, प्रकाशित वाक्य 2 का 22 और प्रकाशित वाक्य 7 का 14 बात करते हैं उस मेगाथिलिपिस जिसे कहा गया, मेगाथिलिपिस अर्थात महाक्लेश जिसे कहा गया जेकब्स ट्रबल पुराने नियम में, और जिसे कहा गया ग्रेट ट्रिबुलेशन जो पृथ्वी पे आएगी। अभी हम वहां नहीं हैं। घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप ट्रेलर देख रहे हो, लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 3 से 14 वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मत्ती 24 अध्याय 3 से 14 पढ़िएगा ध्यान से। यीशु मसीह बताते हैं कि जब ह्यूमन गवर्नमेंट का पृथ्वी पे, मनुष्यों का जो राज्य है, पूरी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य अपनी गवर्नमेंट बनाता है। कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं पे मोनार्की है। अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स इंसान ने बनाई हैं, ह्यूमन गवर्नमेंट्स। तो ह्यूमन गवर्नमेंट्स जब एंड होंगी तब प्रभु यीशु मसीह आके अपना राज्य पृथ्वी पे स्थापित करेगा, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में देखते हैं। वो यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य है इसी पृथ्वी पे। प्रभु यीशु मसीह आएगा, अभी हमें किसी भी समय आएगा, हमें उठा के ले जाएगा। बाइबल में उसे कहा गया यूनानी भाषा में हारपेजो। बहुत से लोग कहते हैं कि रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है, लेकिन प्रेरित पौलुस जो शब्द इस्तेमाल करता है कि
तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत की ललकार के साथ प्रभु आएगा और हम हवा में उठा लिए जाएंगे। प्रेरित पौलुस जो शब्द इस्तेमाल करता है वो यूनानी शब्द है हार्पेजो। इसी को ग्रीक को जब लैटिन में ट्रांसलेट किया, वल्गेट ट्रांसलेशन जिसे बोलते हैं, तो हार्पेजो के लिए जो वर्ड यूज किया गया लैटिन में वो वर्ड है रापेरे। रापेरे वर्ड से आगे वर्ड निकला है रैप्चर। हम प्रभु को मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे, हालेलुया। उसके बाद 7 साल पृथ्वी पे सताव आएगा और 7 साल के सताव के बाद हम मसीह के साथ पृथ्वी पे आएंगे और 1000 साल के लिए राज्य करेंगे ऑन दिस वेरी अर्थ, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वचन में से बताऊं कि यह ट्रिबुलेशन क्या है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ताकि हम एंड टाइम इवेंट्स को समझ सकें कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है, उसे सिलसिलेवार ढंग से हम समझ सकें। तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूं दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय, उसका 7 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये की वर्स है एक, दानियल 9 का 27, डैनियल चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 27। यहाँ पे क्या लिखा? ही विल कन्फर्म ए कवेनेंट विद मैनी for 7. In the middle of the 7, he will put an end to the sacrifice and offering, and at the temple he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हफ्ते का जिक्र है, एक वीक का। ये जो एक सप्ताह है ये 7 साल का है। इसके विषय में अभी हम और बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक वीक जो है ये 7 years रेन है, 7 साल का शैतान का पृथ्वी के ऊपर राज्य है। ये अभी नहीं आया। तो मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि वचन क्या क्या बताता है, कौन कौन से साइंस हैं। सबसे पहली बात, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय पढ़िएगा। क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में? प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय बताता है कि कॉस्मिक साइंस होंगे, सेलेशियल साइन, आसमान के अंदर चिन्ह प्रकट होंगे। मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय में हम फिर लौटेंगे, जहां मसीह खुद अपने मुंह से ये बातें कहता है। आसमान में क्या साइंस होंगे? रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में लिखा है, ऊपर से तारा टूट के गिरेगा। और उसके लिए जो ग्रीक वर्ड है एस्ट्रॉन, जहां से हमारा शब्द निकलता है एस्टेरॉयड। आप हैं कि एक एस्टेरॉयड है जो भूमि पे गिरने वाला है, और बाइबल में इसे वर्मवुड कहा गया। रेवलेशन चैप्टर नंबर 8 में नागदौना तारा पंजाबी में कहा गया, जो गिरता है और समुद्रों के पानी को दूषित कर देता है और 1/3 पृथ्वी के ऊपर इसका असर पड़ता है। एस्ट्रॉन ऊपर से गिरेगा। मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय के 29 वचन में जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह 3 बातें बताते हैं। यीशु मसीह बताते हैं सूर्य में, चांद में और तारों में निशान होंगे। सूर्य में सन फ्लेयर्स, सूर्य के अंदर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं। सन फ्लेयर पृथ्वी के ऊपर आ रही हैं और सूर्य में से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं जो पहले नहीं आती थी। सन के अंदर सन फ्लेयर, सूर्य में सन फ्लेयर हो रहा है। और यीशु मसीह ने कहा चांद में, मून में निशान होंगे। 3 बार 2016 से 2018 तक 3 बार यहूदियों को जो पर्व मनाने के लिए यहोवा ने कहे, फसह का पर्व और झोंपड़ियों का पर्व, इन दोनों पर्वों के ऊपर 3 सालों में 2-2 बार रेड ब्लड मून हो चुका है। सूर्य चांद का रंग लहू के जैसा लाल हो चुका है। ये यीशु मसीह ने कहा एक चिन्ह होगा आमद से पहले। फिर यहां पे लिखा है तारों के अंदर निशान होंगे। यीशु मसीह ने कहा तारों में चिन्ह होंगे, मत्ती 24 की 29 में। इसके लिए ग्रीक वर्ड है मीटेरोइटिस, जहां से वर्ड निकलता है मीट्रियोटिक शावर। मीट्रियोटिक शावर्स हो रही हैं ऊपर मून में। ऊपर निशान यहोवा परमेश्वर भेज रहा है जिसे मनुष्यों ने नहीं देखा। मत्ती 24:30 में एक बहुत बड़ा साइन था। Matthews 24:30 Jesus said, "You will see the sign of the Son of Man in the sky." This sign appeared in the constellation 23rd September 2017. Go and log on YouTube. Look for 23rd September 2017. A great celestial sign has already taken place. This was the sign of the birth of Jesus that happened when Jesus was born.
इट गॉट रिपीटेड, दिस इज द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन। विर्गो की कोख में से जुपिटर निकला, बच्चा पैदा हुआ, और ड्रैगन, रेड ड्रैगन आया जो उसको खाना चाहता था। और वचन में लिखा है उसके सर के ऊपर 12 तारों का मुकुट, लियो की कॉन्स्टलेशन के 9 स्टार, और उसके संग 3 प्लैनेट मिल गए आके। और उसके मून जो था उसके पांव के नीचे था, और सूर्य उसकी लेफ्ट साइड पे था, विर्गो की कॉन्स्टलेशन में। ये साइन 23 सितंबर 2017 को पूरा हो चुका है, जो कि एक बड़ा बेंचमार्क था। और आपको मालूम, यशाया नबी की पुस्तक पढ़िए, 34 अध्याय, उसके 2 से 4 वचन तक। यशाया नबी क्या कहता है? यशाया नबी कहता है सूर्य को यहोवा परमेश्वर स्क्रोल की तरह लपेट देगा। जैसे आप सुबह उठ के अपने बिस्तर की चद्दर लपेट दो, सूर्य को परमेश्वर लपेट देगा, सॉरी, आकाश को लपेट देगा, पूरे आकाश को चद्दर की तरह लपेट दिया जाएगा। पतरस भी अपनी पत्री में यह बात करता है। ये क्या है? ये इशारा है न्यूक्लियर डेवस्टेशन। न्यूक्लियर डेवस्टेशन पृथ्वी पे आने वाली है। हेवंस विल बी पील्ड ऑफ, गॉड विल रैप अप द हेवंस। तो ये एक मासिव डेवस्टेशन आने वाली है। और फिर वचन बताता है कि नेचुरल डिजास्टर आएंगे। अब तीसरी तरफ आपको लेके जा रहा हूं। मैंने आपसे बात की कॉस्मिक डिसरप्शन की, सेलेशियल साइंस की। अब मैं आपको बता रहा हूं नेचुरल डिजास्टर। प्रकाशित वाक्य में 5 बार लिखा है अर्थक्वेक के बारे में। मासिव अर्थक्वेक आएंगे पृथ्वी के ऊपर 5 बार, ये वचन के अंदर लिखा है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 8 और 9 वचन में लिखा है कि माउंटेन समुद्र के अंदर जा गिरेंगे। कैसे होगा? माउंटेन समुद्र के अंदर कैसे गिरेंगे? वोल्केनो इरप्शन होगी। आपको मालूम वोल्केनोज बस्ट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ चुकी है। वोल्केनो इरप्ट होने से माउंटेन्स विल फॉल इनटू द ओशन एंड दैट विल ट्रिगर ग्रेट सुनामीज अराउंड द वर्ल्ड। बड़ी बड़ी वेव्स पानी की आएंगी और बहुत बड़ी बड़ी सुनामीज आएंगी वोल्केनिक इरप्शन के कारण। फिर वचन में क्या लिखा है? अगली बात वचन में लिखा वायरसेस आएंगे। जैसे अभी एक वायरस आ रहा है, इससे भी और डेंजरस आएंगे। वायरस से ज़्यादा लोग मरते नहीं हैं, लेकिन वायरस के कारण जो पैनिक, फियर, वायरस आने के बाद देखिए दुनिया शट डाउन हो जाती है, इकोनॉमी क्रम्बल कर जाती है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय को जैसे लोग कोट करते हैं, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के अंदर पहली जो मोहर खुलती है तो सफेद घोड़े पे एक राइडर बैठा आता है, और उसके सर के ऊपर क्या? क्राउन है। वो जो क्राउन है वो डायाडेम नहीं है। ग्रीक में डायाडेम का मतलब होता है राजा का क्राउन। वो जो क्राउन है वो क्रोनोस है, स्टेफनोस है, जो कि विक्टर का क्राउन है, स्टेफनोस। और वो जीत रहा है और जीत पाता जा रहा है। उसके हाथ में बो है। मैंने आपको बताया था एरो कहाँ है, एक दिन मैसेज दिया था, एरो क्यों नहीं है। ये जो व्हाइट हॉर्स पे बैठा आ रहा है, कई लोग सोचते हैं जीसस क्राइस्ट है। ये फॉल्स मसाया है, एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट आ रहा है। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट अभी आया नहीं है, इसलिए मोहरें नहीं टूटी हैं, इसलिए अभी तक ट्रिबुलेशन के उस फेज में हम लोग एंटर नहीं हुए हैं। और क्या बताता है वचन? जब दूसरी मोहर टूटती है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 4 वचन में पढ़ लीजिएगा, तो रेड हॉर्स आता है, लाल घोड़े पे बैठा है। प्लेनेट मार्स एक्टिवेट हो जाता है, जो लड़ाई का प्लेनेट है मार्स। तो पृथ्वी पे लड़ाई, घनघोर लड़ाई आती है। और उसके आने से क्या होता है? रेड हॉर्स पे, लाल घोड़े पे जो आता है, पृथ्वी से शांति उठा ली जाती है, पूरे वर्ल्ड से शांति चली जाती है, पूरे विश्व में वॉर्स होती हैं। बेशक अभी अफगानिस्तान में, सीरिया में, मिडल ईस्ट में लड़ाइयाँ हैं, और अफ्रीका में कुछ लड़ाइयाँ हैं, लेकिन अभी तक पूरे विश्व में लड़ाइयाँ नहीं लगी। अभी तक पूरे विश्व से शांति उठाई नहीं गई। और तीसरी मोहर जब खुलती है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 6 वचन में क्या लिखा है? तीसरी मोहर खुलती है तो ब्लैक हॉर्स आता है, और जो उसके हाथ बैठा है उसके हाथ में क्या है? स्केल है, तराजू है। ये फैमिन है। पृथ्वी के ऊपर खाने पीने के पदार्थों की शॉर्टेज हो जाएगी, जो अभी शुरू हो रहा है प्रोसेस।
खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी और खाने पीने के पदार्थों की कमी हो जाएगी, सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, पृथ्वी पे बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। वचन बताता है एक दिन बंदा मेहनत करेगा, उसकी कमाई से एक वक्त की रोटी मिलेगी उसे। अभी ऐसा समय नहीं आया, इसलिए अभी ट्रिबुलेशन शुरू नहीं हुई। चौथी सील प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 8 वचन में, ये सील के ऊपर मैंने चारों आपको वचन प्रचार कर चुका हूं पहले। ये गया, बाकी 3 हॉर्सेस के नाम नहीं है, इसका नाम है क्लोरोस। क्लोरोस वही शब्द है जहां से क्लोरीन शब्द निकलता है। हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई दी जा रही है ना अमेरिका में, इंडिया में कोविड-19 के पेशेंट्स को, जो जो मलेरिया में दी जाती है, ये भी वर्ड उसी के संग कनेक्टेड है, क्लोरोस के साथ। और इसके ऊपर मौत बैठी है, थैनाटोस, और पीछे हेडीज है। और ये दोनों को ही यीशु मसीह यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य देते हैं, दर्शन देते हैं, कहते हैं मैंने थैनाटोस को और हेडीज को। ये ग्रीक देवता हैं, ग्रीक पैंथियोन के। मैंने आपको बताया ये सारे देवता अलग अलग पैंथियोन के, ग्रीक, सुमेरियन, इजिप्शियन, बेबीलोनियन, अकेडियन, हिटियन, अमालकाइट, रोमन, ये सारे एक्टिवेट हैं पर पूरी बाइबल के अंदर। ये सारे गतिविधियां, कई जगह जहां पे बवाओं का नाम लिखा है, प्लेग, पेस्टिलेंस, वो असल में देवता हैं अन्य जाति के। ये डेमोनिक एंटिटीज हैं जो पृथ्वी के ऊपर अनलीश की जाती हैं। वचन को जब पढ़ोगे नीचे जाके गहराई में, तब आपको ये सत्य मिलेंगे। तो ये क्या लेके आएगा जो 4th हॉर्स है, थैनाटोस जिसके ऊपर बैठा मौत, और हेडीज जिसके पीछे आ रही है, और इसका नाम है क्लोरोस, बायोलॉजिकल लड़ाइयाँ। और ये जानवरों से आने वाली बीमारियां बंदों के अंदर, जिसे हम प्लेग्स बोलते हैं, वायरसेस बोलते हैं, ये लेके आए। आपको मालूम, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ। 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा नाम की एक प्लेग आई। 500 मिलियन लोग इससे इफेक्ट हुए, 5 करोड़ लोगों के ऊपर इसका असर हुआ, और कई मिलियन लोग मर भी गए इसके कारण। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई और हॉरेबल फैमिन आया, और बहुत यूरोप के अंदर और कई पैंडेमिक्स आए जिसके अंदर बहुत से लोग मरे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत से लोग मर गए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई, जब ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया, तब भी लोगों ने बोला कि ट्रिबुलेशन शुरू हो गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई और बहुत से लोग मरे, तब भी लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद ट्रिबुलेशन शुरू हो गया। उसके बाद ही लीग ऑफ नेशन बनी, बेल्फोर ट्रीटी हुई, और जो लॉर्ड बेल्फोर थे उन्होंने जूइश लोगों को इज़राइल के ऊपर अधिकार दिया। उनको अधिकार नहीं था इज़राइल का, उनके ऊपर सज़ा आ गई थी। उनको जब परमेश्वर ने बाबल की गुलामी में भेजा, उनकी सज़ा को प्रभु कहता मैं 7 गुना बढ़ा दूंगा। उत्तरी इज़राइल जिसे इज़राइल बोलते हैं, दक्षिणी इज़राइल जिसे जूडा बोलते हैं, परमेश्वर ने लगभग 2600 साल के लिए गुलामी में भेज दिया। लेकिन प्रभु अपने वचन के अनुसार उन्हें वापस लेकर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई, हिटलर आ गया। हिटलर के समय हॉलोकॉस्ट आया। हॉलोकॉस्ट में 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया। सच ग्रॉस्टेक एंड इनह्यूमन वेज इन विच हिटलर किल्ड द जूज, यू कैंट इवन बिलीव। हिटलर को यहूदी लोगों ने कहा कि एंटी क्राइस्ट आ गया, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे क्योंकि हिटलर ने एक निशान देना शुरू किया स्वास्तिक का। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 16-17 वचन में लिखा है जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो अपना मार्क लगाएगा। 666 मैंने आपको बताया था वो क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये क्योंकि वो आउट ऑफ नोवेयर आएगा एंटी क्राइस्ट, तो उन्होंने कहा कि हिटलर भी आउट ऑफ नोवेयर आया है और ये निशान भी देने लगा है। उसी के बाद यूरोप के अंदर क्या हुआ, एक और रेवोल्यूशन आया, और यूरोप में एक टायरेंट खड़ा हुआ बंदा जिसका नाम था मुसोलिनी। तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि ये फॉल्स प्रॉफिट है। एंटी क्राइस्ट को साथ देने के लिए रेवलेशन 13 अध्याय में जो फॉल्स प्रॉफिट आता है वो मुसोलिनी है, और ये ग्रेट ट्रिबुलेशन आ गई है। ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया। समझ रहे आप?
लेकिन आपको मालूम क्या लिखा प्रकाशित वाक्या में? 19 अध्याय प्रकाशित वाक्या 11 से 16 वचन पढ़िए और जकरिया नबी की पुस्तक 14 का 4 वचन पढ़िए। जब ये ट्रिबुलेशन खत्म होगी तो यीशु मसीह आएगा, और यीशु मसीह के विषय में लिखा जब वो आएगा तो अपने घाव दिखाएगा, तो उसके लोग उसे पूछेंगे कि ये घाव तुझे कहाँ से मिले हैं। यहूदी लोग पूछेंगे, तब वो उन्हें कहेगा ये मेरे लोगों ने मुझे घाव दिए हैं, और तब वो उसे पहचान लेंगे और छाती पीट के रोएंगे। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रिबुलेशन थी तो यीशु मसीह को आ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तो सन 2020 है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर आपको मालूम लोगों ने कब कहा? जब बिल क्लिंटन ने यासिर अराफात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके ओस्लो में एक पीस ट्रीटी की। लोगों ने बोला कि डैनियल 9:27 इज फुलफिल्ड when Bill Clinton and Yasser Arafat and the Israeli Prime Minister met together in Oslo and they signed a treaty. People began saying, the end time has begun, we are already in the tribulation, the treaty has been signed, but it never happened so. ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने ऐसी कई प्रिडिक्शन की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेट सेट की, टाइम सेट किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको मालूम उसके बाद क्या हुआ? हेनरी किसिंजर पावर में आया। हेनरी किसिंजर के नाम को हिब्रू में डिकोड किया गया तो हेनरी किसिंजर का नाम बनता है 666। लोगों ने बोला हेनरी किसिंजर इज गोइंग टू बी द एंटी क्राइस्ट। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 16-18 वचन में लिखा है उसके नाम का मूल्य 666 होगा। तो लोगों ने हेनरी किसिंजर को, बिल क्लिंटन को, बराक ओबामा को एंटी क्राइस्ट कहा, और बहुत सारे लोग जो बाइबल नहीं जानते हैं वो अभी डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं कि वो एंटी क्राइस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है अजीजों। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या सीक्वेंशियल ऑर्डर, क्या ट्रिगर करेगा ट्रिबुलेशन को। ट्रिबुलेशन को स्टार्ट करेगी कोई चीज। व्हाट इज दैट इज गोइंग टू स्टार्ट द ट्रिबुलेशन? Tribulation will start with peace treaty with Israel. 7 years false peace treaty the Antichrist will sign with Israel. दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय के 27 वचन में लिखा है, अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। मसीह विरोधी इजराइल के साथ और पृथ्वी की कई कौमों के साथ, शायद यूएन होगी या यूएन का कोई और नया रूप बन जाएगा आने वाले टाइम में। We don't know. It will be reformed, some other name would be given, maybe European Union and UN will merge together and something new will come out. It depends how the new world order is phasing out. तो 3.5 साल 7 साल का समझौता होगा, लेकिन वो 3.5 साल में इसे तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा? एंटी क्राइस्ट। He will made a peace treaty with Israel for 7 years, but right in the middle of the 7 years peace treaty, the Antichrist will break the covenant. And as the Antichrist breaks the covenant, that is the midpoint. Right after that, we find in the Revelation, the wrath of God will be poured out. And so many people suggest that's where the rapture is going to take place. I don't believe in that. Rapture of the church is going to take place before the tribulation actually begins. God hasn't appointed us unto wrath. God will deliver us out of this world even before the bell rings. Hallelujah. और जब ये काम हो जाएगा, 3.5 साल के बाद शैतान पीस ट्रीटी को तोड़ेगा, तो रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़िए और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़िए। When Antichrist breaks the peace treaty with Israel, Revelation 12 and Revelation 13, you read it carefully. What happens? The Antichrist moves into Jerusalem. I believe Antichrist will be coronated somewhere, maybe in Vatican City. Maybe papacy will present him to the world. Papacy will bring the alliance of all the religions of the world, so-called New World Order. Islam and Hinduism and all the religions of the world will merge together. New awakening, new consciousness, new world, that thing will rise, and perhaps the Vatican will present him. लेकिन वो जब 3.5 साल के बाद पीस ट्रीटी तोड़ेगा तो एंटी क्राइस्ट क्या करेगा? यरूशलेम के अंदर एंटर होगा। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट विल मार्च इनटू जेरूशलम व्हेन ही हैज ब्रोकन द पीस ट्रीटी। जब उसने इजराइल के साथ
पीस ट्रीटी को तोड़ दिया है। मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, रेवलेशन चैप्टर नंबर 11 एंड let me read from verse number 1. I was given a reed like measuring rod, and I was told, go measure the temple of God and the altar with its worshipper, but exclude the outer court. Do not measure, because it has been given to the Gentiles. They will trample the holy city for 42 months. 42 महीने अर्थात 3.5 साल तक जेंटाइल्स परमेश्वर के पवित्र टेंपल को अपने पांवों के नीचे कुचलेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रेवलेशन 12 एंड चैप्टर नंबर 6। रेवलेशन 12:6 में क्या लिखा है? द वुमन फ्लेड इनटू द विल्डरनेस एंड ए प्लेस वाज प्रिपेयर्ड फॉर हर बाय गॉड वेयर शी माइट बी टेकन केयर फॉर 1260 days. दैट टाइम गॉड विल सुपरनैचुरली प्रोटेक्ट इजराइल when Antichrist steps into Jerusalem and takes charge of the city. God will protect. बहुत सारे लोग बोलते हैं God will hide Israel in Petra. पेट्रा के अंदर छिपाएगा परमेश्वर इजराइल को। और 13 अध्याय का 5 वचन पढ़ें, रेवलेशन 13 chapter verse number 5. The beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise its authority for 42 months. 42 महीने के लिए शैतान को ताकत मिलेगी। वो बड़े बड़े शब्द बोलेगा और भरमाएगा दुनिया को। आपको मालूम, मैं ऐसा समझता हूं इसका लिंक है इज़िकियल 38-39। इज़िकियल 38-39 टॉक्स अबाउट गोग मगोग वॉर। इज़िकियल 38 और 39 में गोग मगोग की लड़ाई है। ये एक लड़ाई होगी जिसमें जिसकी ग्राउंड बन चुकी है। ईरान भी बैठा है सीरिया में, रशिया भी बैठा है सीरिया में, टर्की भी बैठा है सीरिया में, चाइना ने भी अपनी प्रेजेंस वहां बनाई है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सुडान एंड इजिप्ट एंड some nations from the Middle East, Palestinians, ये सारे इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। और यहोवा परमेश्वर सुपर नेचुरली इन सारे देशों को हरा देगा। सुपर नेचुरली यहोवा इन्हें हरा देगा। अर्थक्वेक भेजेगा, आसमान से कोई चीजें गिरेंगी इनके ऊपर, इनकी फौजें मर जाएंगी और इजराइल ये युद्ध जीत जाएगा। 38 अध्याय और 39 अध्याय गोग मगोग की लड़ाई जो है, मैं ये समझता हूं कि लिखा है 39 चैप्टर और 9 वर्स अगर आप पढ़ेंगे, इज़िकियल 39 वर्स नंबर 9, इट सेज इट विल टेक 7 months फॉर इजराइल टू बर्न द वेपन्स। 7 साल लग जाएंगे उनको हथियारों को जलाने के लिए। 7 साल की ही पीस ट्रीटी है और 7 ही साल वेपन जलाने के लिए लग जाएंगे। हालेलुया। गोग एंड मगोग की लड़ाई अलाइन करेगी ट्रिबुलेशन के साथ। तो ये चीजें बिल्कुल अभी होराइजन पे बैठी हुई हैं, आने वाली हैं। हालेलुया। 7 ईयर्स ट्रीटी के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। 1260 days, 1260 days। मैं चाहता हूं पढ़ें आप 11th चैप्टर 11 अध्याय, और इसके मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं 3 वचन से। चैप्टर नंबर 11 ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3 वचन से पढ़िए। एंड आई विल अपॉइंट माई 2 विटनेसेस। मैं अपने 2 गवाहों को भेजूंगा। इस दौरान जब ट्रिबुलेशन शुरू हो जाएगी, जैसे ट्रिबुलेशन शुरू हुई, ट्रिबुलेशन से पहले चर्च चली जाएगी, परमेश्वर स्वर्ग से 2 गवाह भेजेगा। बाइबल के कुछ विद्वान कहते हैं एलिया और मूसा होंगे, लेकिन कुछ बाइबल के विद्वानों का यह भी मत है कि वो एलिया और हनूक होंगे। तो ये 2 परमेश्वर के दास स्वर्ग से उतरेंगे, स्वर्ग से नीचे उतर के आएंगे और ये यरूशलेम में आएंगे और 1260 दिन ये टाट पहन के रहेंगे। और क्या लिखा है, ये भविष्यवाणी करेंगे, बनी इसराइल के अंदर भविष्यवाणी करेंगे। और अगर आप वचन को पढ़ेंगे ध्यान से, मलाकी नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 5 वचन के अंदर इसका जिक्र है। और ये जब प्रचार करेंगे, इनका प्रचार इसराइली लोग सुनेंगे और इसराइली जवानों में से, इसराइल के 12 गोत्रों में से 12-12 हजार लोग बचाए जाएंगे। 1,44,000 इनके द्वारा वचन सुन के बचेंगे। इनके डिसाइपल होंगे एलिया के
और मूसा के, या एलिया या हनूक, जो भी वो 2 लोग होंगे, और वो तैयार किए जाएंगे। आपको मालूम 13 अध्याय में शैतान मोहरे लगाता है लोगों के इधर या राइट हैंड पे, लेकिन उससे पहले यहोवा परमेश्वर मोहरे लगाएगा। किन्हें? अलफ ताब का निशान यहाँ पे मैंने आपको बताया। अलफ ताब है यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। यीशु मसीह अपना निशान लगाएगा इन धर्मी लोगों के ऊपर। 1,44,000 1,44,000 जब प्रचार करेंगे इज़राइल में और पृथ्वी पे, तब साइन एंड वंडर होंगे। अभी लोग कहते हैं ना जी साइन वंडर साइन वंडर, अभी कोई साइन वंडर नहीं है, अभी सिर्फ हीलिंग एंड मिरेकल हैं। साइन एंड वंडर होंगे ट्रिबुलेशन के दौरान। साइन और वंडर इंटरनेशनल फिनोमेना है जो आकाश के अंदर प्रकट होते हैं तारों के बीच में, जिसे पूरी दुनिया देखती है, उसे बोला जाता है साइन एंड वंडर। ये साइन एंड वंडर होंगे जब ये 1,44,000 प्रचार करेंगे और एलिया और मूसा भविष्यवाणी करेंगे 3.5 साल तक। ये जो बातें मैं आपसे बता रहा हूं, रेवलेशन 11:2 पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 12:6 पढ़ लीजिएगा। ये स्टार्ट होने पे ट्रिबुलेशन के भविष्यवाणी शुरू कर देंगे। ये बातें यूहन्ना का चेला था पॉलीकार्प, वो भी ये बात मानता है। पॉलीकार्प का चेला है आइरेनियस, वो भी ये बात मानता है। आइरेनियस का चेला था इग्नाइशियस, जो पहले पवित्र चर्च फादर थे, चेलों के आगे चेले थे, वो इन बातों को पूरी तरह से मानते थे। हालेलुया। 3.5 साल तक वो प्रचार करेंगे। अब मैं आपको पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का 7 वचन। नाउ व्हेन दे हैव फिनिश्ड देयर टेस्टिमनी द बीस्ट दैट कम्स अप फ्रॉम अबिस। देखिए 3 निकलेंगे, एक ऊपर से आएगा, एक पानियों में से निकलेगा और एक धरती के नीचे से निकलेगा। 3 ही हैं ये भी ट्रिनिटी है शैतानी। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वैसे ये शैतानी ट्रिनिटी है। 3 निकलेंगे। यहां पे लिख रहा है अब जो जमीन में से निकला, अबिस में से निकला, जिसे अबदोन कहा गया है, अपोलियोन कहा गया, वो निकलेगा और इन प्रभु के 2 नबियों को मार डालेगा, उनको ओवर पावर करेगा, उन्हें किल कर देगा, मार देगा। एलिया और मूसा या एलिया हनूक। Their bodies will lie in the public square of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt. कहाँ उनकी डेड बॉडी पड़ी होगी? यरूशलेम में। तो इसे क्या लिखा गया? यरूशलेम कैसा बन जाएगा? सदोम और मिस्र की तरह बन जाएगा। आगे क्या लिखा है? Where also their Lord was crucified. ये परवर्ट पढ़ के देखें कैसे इजराइल यहोवा से दूर गया और दूषित हुआ और परवर्ट हुआ। यहाँ पे इनकी डेड बॉडी होंगी और पूरा संसार इनकी डेड बॉडी को देखेगा सैटेलाइट और टीवी के द्वारा। फिर लिखा है फॉर 3.5 days सम फ्रॉम एवरी पीपल ट्राइब लैंग्वेज नेशन विल गेज ऑन देयर बॉडीज एंड रिफ्यूज देम बैरियल। उनकी बॉडीज को देखेंगे और उनको दबाएंगे नहीं। जैसे अभी कोरोना से लोग मर रहे कई, उनके घर के लोग ही उनकी बॉडी को दबाना नहीं चाहते। तो क्या लिखा आगे? द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ विल ग्लोट ओवर देम। उनकी डेड बॉडी के ऊपर मजाक करेंगे अन्य जाति के लोग, दुष्ट आत्माएं उनके अंदर घुसी होंगी और सेलिब्रेट करेंगे, सेंडिंग, एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे। प्रभु के नबियों के मरने को सेलिब्रेट करेंगे पृथ्वी के परवर्ट लोग, एक दूसरे को गिफ्ट भेजेंगे। बिकॉज दीज 2 prophets हैड टॉर्मेंटेड दोज हु लिव ऑन द अर्थ। क्यों इन्होंने टॉर्मेंट किया धर्मी लोगों ने? क्योंकि ये लोग विकेड थे, दुष्ट थे, इनके अंदर शैतानी आत्मा था। लेकिन क्या लिखा है? बट आफ्टर 3.5 days, 3.5 दिन के बाद, द ब्रेथ ऑफ लाइफ फ्रॉम गॉड एंटर्ड देम। हालेलुया। 3.5 दिन के बाद यहोवा का आत्मा उन नबियों के अंदर, एलिया और मूसा की डेड बॉडी के अंदर घुसा और वो जीवित हो गए। हाले दे स्टूड ऑन देयर फीट एंड टेरर स्ट्रक दोज हु सॉ देम। और वो डर गए जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया, ठट्ठे उड़ाए। हालेलुया। देन दे हर्ड ए लाउड वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग कम अप हियर, एंड दे वेंट अप टू हेवन इन ए क्लाउड व्हाइल देयर एनिमीज लुक्ड ऑन। हालेलुया। वो जलाली दे लेके फिर प्रभु के भक्त उड़ के बदलों में हवा पे चले गए। हालेलुया। ये ट्रिबुलेशन के फर्स्ट फेज में होगा, पहले फेज में। हालेलुया। अगर ये मोहरें टूटी होती भाई और बहनों, तो ये तो सब कुछ घट जाना चाहिए था। इसका मतलब वो शिक्षा सही नहीं है। हालेलुया। आप
वचन की ओर आइए, बाइबल के संग जुड़िए। बंदों की नहीं सुननी है, बाइबल की सुननी है। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय। मैं सिर्फ पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। देखिए प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है, इमीडिएटली आफ्टर द डिस्ट्रेस ऑफ दोज डेज, उन दिनों की जो तकलीफ है उसके बाद एकदम क्या हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, द सन विल बी डार्कन्ड एंड द मून विल नॉट गिव इट्स लाइट एंड द स्टार विल फॉल फ्रॉम द स्काई एंड हेवनली बॉडीज विल बी शेकन। उसके बाद क्या होगा, अंधकार का समय आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसी का 24 का अगर आप पढ़ेंगे, 4 वचन से पढ़िएगा। प्रभु इसकी पूरी सीक्वेंस बताते हैं जो मैंने आपको बताया। ऊपर निशान होंगे, पृथ्वी के ऊपर अर्थक्वेक, सुनामी आएंगी, पॉलिटिकल अपहीवल होगी, सियासी तौर पे पूरी दुनिया की सियासतें, हुकूमतें डगमगा जाएंगी, फाइनेंशियल बिजनेस वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, फैमिन्स आ जाएंगे, तरह तरह की डिजीजेज, वायरस और कई तरह की बीमारियां आ जाएंगी। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, पेस्टिलेंसेज आएंगी, रूमर्स ऑफ वॉर आएंगी। लेकिन इसी की मत्ती 24 की 8 पढ़ेंगे, यीशु मसीह कहते हैं ये तो पीड़ा का आरंभ है, अभी पीड़ाओं का आरंभ शुरू हुआ है। मत्ती 24:14 अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूं आपके लिए मत्ती 24 अध्याय 14 वचन। यीशु मसीह कहते हैं, एंड द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम विल बी प्रीच्ड इन होल वर्ल्ड एज अ टेस्टमनी टू ऑल नेशंस, देन द एंड विल कम। पूरे जगत में सुसमाचार सुनाया जाएगा, फिर एंड आएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13 की 11 से 18 में लिखा है, वो मूर्ति रखेगा शैतान आके, और मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसके अंदर वो जान डालेगा। तो हमें क्या करना अभी इन दिनों में, लिखा है यीशु मसीह की गवाही देनी है। जगह जगह जाके लोगों को यीशु मसीह की गवाही देनी है। इस समय सुसमाचार पूरे विश्व में जाएगा, विश्व भर में। बहुत सारे लोग नहीं मानते ये, लेकिन मैं ये पूरा विश्वास करता हूँ, वचन को पढ़ के मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर यीशु मसीह की एक बहुत ज़बरदस्त गवाही जाएगी। अभी ये जो टाइम है, सच्चे जो भक्त हैं, जो ठग नहीं है, चोर नहीं है, जो बनावटी नहीं है, दिखावा नहीं करते, सच्चे प्रभु के भक्त, उन्हें प्रभु इस्तेमाल करेगा पूरे विश्व में अपनी गवाही के लिए। पर मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए जोएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 28 वचन पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु का वचन क्या कहता है, एंड आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स कौन सा, ये घटनाओं के बाद, आफ्टरवर्ड्स आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल पीपल, मैं अपना रूह सबके ऊपर उंडेलूंगा। ये भविष्यवाणी को आपको मालूम, जब पंतेकुस के दिन पतरस प्रचार करने लगा, जब आग की फटती जीभें आईं और यहूदी जो पूरे विश्व में तितर बितर थे वो हैरान हो गए, अपनी अपनी भाषा में प्रभु की महिमा के वचन सुन रहे थे, पवित्र आत्मा से लोग भर गए। तो पौलुस ने यहाँ से प्रचार किया कि ये जो जोएल नबी ने लिखा है, थोड़ा हिस्सा इसका तब पूरा हुआ, लेकिन मेजर पार्ट इसका अब पूरा होने वाला। क्या लिखा है, मैं अपना आत्मा बहा दूंगा, योर सन्स एंड योर डॉटर्स विल प्रोफेसाई, जवान नबूवतें करेंगे। कैसी, सच्ची नबूवतें, ठगने वाली नहीं। आ रहा हूँ तेरे घर में आ रहा हूँ, काले सूट वाली खड़ी हो जा, तेरा ये हो रहा वो हो रहा, मिठा नहीं खाना, तेल लगा लो फलाना कर, ये नहीं। सच्ची नबूवत का रूह उतरेगा। जवानों, सन्स एंड डॉटर्स विल प्रोफेसाई, योर ओल्ड मैन विल ड्रीम ड्रीम, योर यंग मैन विल सी विजन्स। एक मासिव आउटपोरिंग होगी। हालेलुया। एक बहुत बड़ा पवित्र आत्मा की कटनी काटी जाएगी। और फिर प्रभु क्या कहते हैं 30 वचन में, आई विल शो वंडर्स इन हेवन एंड ऑन अर्थ, ब्लड एंड फायर एंड बिलोज ऑफ स्मोक, द सन विल बी टर्न टू डार्कनेस एंड द मून टू ब्लड बिफोर द कमिंग ऑफ द ग्रेट एंड ड्रेडफुल ऑफ डे ऑफ द लॉर्ड। ये है रॉथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पे उंडेला जाए, उससे पहले एक बड़ी कटनी कटेगी। हालेलुया। आप उसके लिए तैयार रहें। परमेश्वर सच्चे लोगों को इस्तेमाल करेगा। ये सारे चिन्ह साइन पूरे होते जा रहे हैं। वचन को पढ़ें, वचन के संग जुड़िए। लोगों के संग नहीं जुड़ना है, वचन के संग जुड़ना है। इसे खोजें, इसका अध्ययन करें, पवित्र जीवन गुजारिएगा भाई और बहनों। अब पाप में, हरामकारी, बदकारी में, चोरी, ठगी, हर तरह की बुराई में जीवन होगा और प्रभु की सेवा भी करेंगे तो बहुत बड़ा दंड पाएंगे।
प्रभु बताता है अब पवित्र बंदा पवित्र होता जाएगा और अधर्मी बंदा अधर्मी होता जाएगा। ऐसा समय आ रहा है, इसलिए वचन के संग जुड़िए, वचन का अध्ययन कीजिए, सच्चे परमेश्वर के सेवकों के साथ संगति कीजिए, लेकिन उनको यीशु मसीह की जगह पे मत बैठाइए। किसी को पापा नहीं कहना है। एक ही है हमारा पापा स्वर्ग में, एक ही है हमारा रब्बी यीशु मसीह स्वर्ग में। यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन गुजारना है। हमारा प्रभु जल्द आ रहा है। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। Father, I pray that you would bless these people, that you would use them as your messenger in the end times. Open the book of Revelation and the book of the prophets to your people. May they learn, may they glean deep, profound spiritual truths that are underlined in your word. Open the eyes and open the hearts, Father. Send great revival among us. एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी कटनी हमारे बीच में भेज प्रभु। हम तेरा धन्यवाद और तेरे नाम की महिमा करते हैं। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। प्लीज़ ये वीडियो को आप वॉच पार्टी कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज़ सब बांटिए, दूसरों तक पहुँचे, ताकि पता लगे कौन सा टाइम, कौन सी ऋतु, कौन सा समय और कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। शाम को 6 बजे फिर हम छोटा सा बाइबल अध्ययन करेंगे और प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और लोगों को बताइए और हम जुड़िए परमेश्वर के वचन के साथ। मैं ये नहीं कहता हमारे संग, परमेश्वर के वचन के संग जुड़िए। द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 6 o'clock in the evening. Tell others to join us 6 p.m. in the evening. In Jesus' mighty name. Amen.